So once again, a very good morning to all of you, and welcome to the class Rasul Balana. And you are learning English language in this lecture. So my dear students, as you know, for the last few days, these English language classes have been being provided to you all, and I hope that you are really learning something with the help of these classes, and you are enhancing your skill of speaking. Okay, so just it is very important to have a good communication skill. Okay, why? Because if you, as I told you in previous classes also, that if you are able to just read and write, that is not your 100% in that language. Okay, because our communication, if you talk about that 90%, that is oral. Okay, just only 10 to 15% we use in the matter of reading and writing. So you are required to learn how to speak, how to have the communication in that language also which you are using. So dear students, if you talk about our junior program, that is for 6th to 8th class students program, it is taught from 6th to 8th class. So it is very impressive and very easy program to this level students. Today we will once again revise on previous which we have done. After that we will go for our next topic, which is about duty and compulsion. Okay. First of all, in this program we learned about how to show that फ्यूचर एक्शन. हमने सीखा था कि फ्यूचर एक्शन को कैसे शो करते हैं. वेरी इजी टू शो फ्यूचर एक्शन. वी विल गेट सम फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट लैंग्वेज. हमारा सबसे पहले हमें फर्स्ट लैंग्वेज में क्लू मिलेगा. ओके, लाइक गाएगी फॉर एग्जांपल, मैं जाऊंगा, खेलूंगा, पढ़ूंगा, उठूंगा, बैठूंगा, सोऊंगा, ओके, दौड़ूंगा, गाऊंगा, नाचूंगा, लाइक दिस. गाएगी we will get in end of sentence in Hindi. It means we are talking about future action. Okay, और उस future action के लिए हमारे पास क्या थे क्लू? हमारे पास दो क्लू थे उसके लिए. What was that? What were these? Sorry, those were will and shall plus verb plus form. Will, shall plus verb plus form we learned we have to use if we are talking about future action. अगर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्यूचर एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है? विल और शैल. फॉर एग्जांपल, मैं जाऊंगा, ओके, मैं खेलूंगा, मैं पढ़ूंगा. तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट एंड देन विल एंड शैल एंड देन वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट. ओके, लाइक मैं पढ़ूंगा, यानी ये आई, वी कैन यूज विल हियर आल्सो. आई विल, पढ़ना क्या होता है? रीड. ओके, आई विल रीड. ओके, गाऊंगा, आई विल सिंग. ओके, जाऊंगा, आई विल गो. खेलूंगा, I will play. लिखूंगा, I will write. So like this we can use anything. Okay, but will there will not be any kind of change in it. Okay, after that if we change subject here, then after that also there will not be any change in will. Okay, वो पढ़ेगा, he will read. Okay, if you talk about a female, then we will say about a girl. If you talk about that, then she will be used. Okay, she will read. Okay, so this is simple sentence in future action. इसी का हम क्वेश्चन बनाएंगे तो will आगे आ जाएगा. Okay, क्वेश्चन कैसे बनेगा हमारा? Will she read? That was taught in that concept. वो हमने सीखा था कि क्वेश्चन will को आगे लेके गए तो क्वेश्चन बन जाएगा. दिस इज सिंपल क्वेश्चन. ओके, इसी का हम और भी क्वेश्चन बनाना चाहेंगे. तो क्यों पढ़ेगी? Why will she read? कब पढ़ेगी? When will she read? Okay, क्या पढ़ेगी? What will she read? So that there we can make more and more questions. There we can reply more and more. Okay, so dear, making question you must know if you talk about the conversation. अगर आपको कन्वर्सेशन सीखना है, बातचीत सीखना है, तो उसमें आपको क्वेश्चन करना भी आना चाहिए. ओके, सो दैट वाज आवर फर्स्ट कांसेप्ट. वी लर्नड अबाउट हाउ टू शो द फ्यूचर एक्शन. ओके, तो आफ्टर दैट वी लर्नड अबाउट एग्जिस्टेंस प्रेजेंस. एग्जिस्टेंस प्रेजेंस के लिए हमने यूज किया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको, इज एंड आर वी यूज. ओके, इज एंड आर we used to show the existence presence. like मैं एक लड़का हूँ, I am a boy. It is showing your existence. आपको आज से तो बता रही है. Okay, ये हमारा स्कूल है. This is our school. like this. Okay, we use is and are to show that existence and presence. After that we learned about how to show order and request. order request में बहुत ही सिंपल है. Okay, अगर हमें order और request शो करना हो तो हमें यूज करना होता है do और do not do, यानी कि करो या फिर मत करो. Okay, आप इसका क्या होता है? ऑर्डर और रिक्वेस्ट के लिए हम ये यूज करते हैं. ये यूज करते हैं फॉर रिफ्यूजिंग, मना करने के लिए. ओके, अगर हमें रिक्वेस्ट करना है दैट विल बी डन विद पोलाइटनेस. रिक्वेस्ट हमारी होती है पोलाइटनेस के साथ.
उसके लिए हमें प्लीज यूज करना है, ओके। और ऑर्डर अगर करना हो तो वो होता है स्ट्रिक्टनेस के साथ। So that these both the things are shown with our expressions, okay। तो expressions भी हमारे जज किए जाते हैं when we communicate with anybody in English, okay। अगर हमें ऑर्डर देना किसी को like that, यहाँ बैठो, so in that we are a little bit arrogant, okay, and just anger, we will say strictly, we are saying that sit here, okay। और अगर हम रिक्वेस्ट करें that shows very politeness, please sit here, okay। So like this expressions, these help a lot to show our feelings in English if we talk about that, okay। So order and request that has been taught to you. Now after that you learn about how to show the continuity and frequency। उसके बाद आपने सीखा था कि कंटिन्यूटी और फ्रीक्वेंसी को कैसे शो करते हैं। कंटिन्यूटी और फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास कुछ और क्लूज थे, लाइक वी हैड सम मोर कीज लाइक इज एंड आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी, ओके। लाइक फर्स्ट लैंग्वेज की क्या थी हमारी, यहाँ पे कंटिन्यूटी को हमें शो करने के लिए फर्स्ट लैंग्वेज में हमारी कुछ की होती है, लाइक मैं जाऊंगा, सॉरी मैं जा रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हैं, रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, अंडरस्टूड। तो उसके लिए हमें इज एंड आर यूज करते हैं। इन प्रीवियस क्लास में डिस्कस्ड अबाउट दैट। अब इज कहां यूज करते हैं, विद ही, शी, इट and singular, and with I, okay, are with plural sense, okay। So like that if you talk about कि मैं जा रहा हूँ, it means we are talking about I, so I am, जाना क्या होता है, go, plus I के लगा देंगे going, okay। I am going, अगर हम he की बात करें, okay, कि वो है जा रहा है, in that case he के साथ singular है, so he is going, understood। दे यानी कि प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा हो गया है, दे आर गोइंग, आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, दे आर गोइंग, यू आर गोइंग, वी आर गोइंग, आई एम गोइंग, ही इज गोइंग। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। ये हमारा सिंपल सेंटेंस। अब इसमें भी हमें क्वेश्चन बनाना चाहिए, आना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, वी विल यूज इज बिफोर सब्जेक्ट, ओके, इज ही गोइंग, एंड देन इट विल बिकम क्वेश्चन। इसका हम more persons बना सकते हैं, where is he going, okay, when is he going, okay, how is he going, इसके साथ चल रहा है with whom is he going। So like this more and more persons we can make to reply more and more here, okay। After that we learned about how to start a conversation। बेटा वो भी आना चाहिए, क्योंकि कन्वर्सेशन अगर हमें बातचीत स्टार्ट करना ही नहीं आता है, then what would we talk about, किसके बारे में बात करेंगे, okay। So now let's go to the point। Now we are discussing about duty and compulsion। ड्यूटी क्या होता है बेटा, जो हमारा फर्ज होता है, जो हमें करना है और करना होता है, ओके। कंपल्सन मजबूरी, ओके, करना पड़ता है, ओके। यानी कि हमारा फर्स्ट लैंग्वेज का क्लू क्या हो गया, करना है, करना होता है, और इनमें से होता है, और इनमें से पड़ता है। करना है, ना होता है, ना पड़ता है, अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मुझे मंदिर जाना होता है, अंडरस्टूड। पूजा करनी होती है, दैट इज आवर ड्यूटी, ओके। कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, दैट इज आवर ऑब्लिगेशन, वो हमारा कर्तव्य है कि हमें उठना ही है, because we have to do many things, we have to do many of the tasks in early morning, okay। पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है, दैट इज कंपल्सन, बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ व्हीकल और बसेस फैसिलिटी नहीं है हमारे स्कूल में, फॉर एग्जाम्पल। इन दैट केस ये क्या है, हमारा कंपल्सन है कि हमें स्कूल जाना पैदल पड़ता है, ओके, पैदल स्कूल जाना पड़ता है, ओके। मोर एग्जाम्पल कि मुझे जल्दी खाना है और खाना होता है, अंडरस्टूड, ओके। अदर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ड्यूटी की बात करें, तो मुझे ग्रैंडपा के साथ मार्केट जाना होता है, that is also our duty। The grandpa is old man, okay, if he has to buy something he cannot carry all those bags, so you help him, okay, that is your duty। ये आपकी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी। इन दैट केस दैट बिकम्स करना है, मुझे जाना होता है, ओके। मोर एग्जांपल्स कंपल्सन की बात करें, अगर हम बात करें
कि मुझे जल्दी उठना पड़ता है, दैट इज कंपल्सन. Nobody wants to get up early in the morning because it's very nice to sleep in the morning, but we have to get up. For some of the students, कुछ एक स्टूडेंट्स के लिए ये क्या बन जाता है, कंपल्सन बन जाता है, बट इट्स आवर ड्यूटी, ये हमारा ड्यूटी है कि जब हमें जल्दी उठना है, बिकॉज वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ द टास्क. ओके, फॉर एग्जांपल अगर उसके बाद बात करें कि मुझे स्कूल जाना है, ओके, इसको हम ड्यूटी भी मानते हैं, ऑब्लिगेशन भी है, लेकिन किसी के लिए ये कंपल्सन भी होता है. Those who do not want to go to school. Okay, so simply what I am talking about duty and compulsion. हमारे क्लू क्या होते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज की हमारी होती है हिंदी में, हमें क्या क्लू मिलेगा, हिंदी में हमारे क्लूज होंगे करना है, करना होता है और करना पड़ता है. तो इंग्लिश में हम उस चीज को कैसे एक्सप्रेस करेंगे बेटा, वेरी सिंपल. टू एक्सप्रेस इन इंग्लिश वी हैव सम स्पेशल कीज. इसके लिए हमारे पास कुछ एक स्पेशल कीज हैं. Okay, what are these? These are has to and have to. Okay, plus verb first form. या तो हम has to यूज करेंगे या फिर have to plus verb first form यूज करेंगे. Okay, अब has to कहाँ यूज करते हैं और have to कहाँ यूज करते हैं. Point is this. Now today we will discuss about only has to. आज हम किसके बारे में बात करेंगे, only has to के बारे में बात करेंगे. has to plus verb first form किसके लिए यूज करते हैं, to show duty and compulsion. ओके, और कहाँ यूज करते हैं, इन सेकंड लैंग्वेज. फर्स्ट लैंग्वेज में हमारे क्लू क्या होते हैं, करना है, करना होता है, करना पड़ता है, और सेकंड लैंग्वेज में हमें क्या यूज करना है, वी हैव टू यूज has to plus verb first form. have to भी यूज करते हैं, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग जस्ट अबाउट ओनली has to. So dear, where do we use has to? has to कहाँ यूज करते हैं, very simple, we have to use has to with he, she, it, singular name and singular person, singular thing. Okay, he, she, it, singular name and singular person. इसके साथ क्या यूज करेंगे, we will use has to. Okay, और यही हमारा क्लियर है कि हम हैज टू इसके साथ यूज करेंगे. ओके, एग्जांपल लाइक उसे खेलना है, उसे खेलना है. माइंड दिस थिंग, नोट दिस थिंग कि हम हमारा क्लियर क्या होगा, ना है, ना होता है, ना पड़ता है. अंडरस्टूड. तो हमें क्या सेंटेंस क्या है हमारा, उसे खेलना है. फॉर एग्जांपल उसे है, दिस इज आवर सेंटेंस. अब हम इसको कैसे शो करेंगे इंग्लिश में, वी हैव दिस क्लू. ओके, क्या है, हैज टू यूज करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि हम उसके बारे में बात करें तो ही क्या करना है, वी विल यूज नाउ इट. ओके, ही हैज टू, खेलना क्या होता है, प्ले. ही हैज टू प्ले. अंडरस्टूड. ओके, more example if you talk about कि भाई if you talk about girl, अगर हम गर्ल की बात करें, so what would be here, she has to play. Okay, she has to play. Boy, if it is there then we will use he has to play, or girl if it is there then we will use she has to play. Understood. So these are our sentence. More example if we talk about that कि भाई हाँ grandma को worship करना है. Okay, grandma often keep singing hymn. Okay, keep worshiping Lord Hanumana, Lord Shiva, Goddess Durga, and like this. So that is her duty every day. She keeps doing this thing. So in that case if we talk about that, तो उसकी ड्यूटी को शो करना हो तो कैसे शो करेंगे कि ग्रैंडमा को वर्शिप करना है. So what do we use beta, same thing we have to use, grandma is singular. Okay, so grandma के साथ क्या लगा है, grandma has to क्या, worship, grandma has to worship. Okay, after that if we talk about कि भाई मम्मा को कपड़े धोने हैं. Okay, मम्मा is also singular. In that case what would we say, क्या बोलेंगे, मम्मा has to क्या, कपड़े धोने हैं.
Mama has to wash clothes. Okay. After that, what do we use? इसके बाद क्या यूज करते हैं? We use some of the more things like that. If you talk about कि पापा को ऑफिस जाना है, पापा को तैयार होना है, पापा is also singular. Then what do we use for that? उसके लिए क्या यूज करते हैं? Okay, पापा has to, तैयार होना क्या होता है? Get ready. पापा has to get ready. किसके लिए? ऑफिस के लिए. पापा has to get ready for office. Okay. More example अगर हम बात करें कि भाई राहुल को क्या करना है? ट्यूशन क्लास अटेंड करनी है. राहुल इज सिंगुलर. इन दैट केस क्या यूज करेंगे? कि राहुल सेम थिंग. राहुल हैज टू क्या? अटेंड ट्यूशन क्लास. अंडरस्टूड? राहुल हैज टू अटेंड ट्यूशन क्लास. ओके, उसे करनी है. ही हैज टू अटेंड. ओके, इफ यू टॉक अबाउट गर्ल कि दिव्या को करना है, दिव्या हैज टू. Okay, and if you say she has to, that is also fine. Okay. So it means if we talk about he, she, it and singular, it means we have to use has to plus verb first form. Okay, has to do. Okay, more example अगर हम बात करें कि भाई दया आंटी को शॉपिंग करनी है. ओके, करनी है. सॉरी, दया आंटी को शॉपिंग करनी है. ओके, so what do we use? दया आंटी. सिंपल थिंग, हैज टू क्या करना है? डू शॉपिंग. अंडरस्टूड? सो दिस इज अवर सिंपल सेंटेंस. ओके, अब हम इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे बेटा? मोर सेंटेंसेस यू कैन मेक इन योर नोटबुक. राइट एंड keep making sentences with the help of these things. Okay, इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? इसका क्वेश्चन हम बनाएंगे does से बनाएंगे. Okay, does. Okay, दया आंटी अब has का क्या बन जाएगा? have to do shopping. और ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन. माइंड दिस थिंग, नोट दिस थिंग कि हैज टू का क्वेश्चन किससे बनेगा? डज से बनेगा. और हैज टू यूज, डज यूज करने के बाद हैज टू का क्या बन जाएगा? हैव टू. डज दया आंटी हैव टू डू शॉपिंग? यस, दया आंटी हैज टू डू शॉपिंग. ओके, मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल बताता हूं आपको बाय व्हिच यू कैन अंडरस्टैंड नाइसली, यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली. और बताता हूं आपको एक एग्जांपल कि भाई क्रिश को न्यू ड्रेस खरीदनी है. ओके, क्रिश को न्यू ड्रेस खरीदनी है. ओके, क्रिश अब सिंगुलर है, ऑब्वियसली वी हैव टू यूज द सेम थिंग. क्रिश हैज टू, खरीदना क्या होता है? परचेज, एंड वी कैन से बाय आल्सो. क्रिश हैज टू बाय न्यू ड्रेस. ओके, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? सेम, डज से बनेगा क्वेश्चन. डज क्रिश हैव टू बाय न्यू ड्रेस? ओके, यस, क्रिश हैज टू बाय न्यू ड्रेस. और नहीं खरीदनी है. क्रिश डज नॉट हैव टू बाय न्यू ड्रेस. Understood? So all these three things you have learned about that, how to make question, how to make negative sentence, and how to answer the things. Okay, if there is any doubt, so you can put in comment box. I hope that this point is clear to you. Rest of the things we will learn tomorrow. What is your task today? What you have to do? Write the things in your notebook and try to make some sentences, and please use in your routine. And once again, we will meet. Let's meet in next class tomorrow. Till then, stay home, stay safe. That's all for today. Have a good day. Bye bye. Thank you.